Hello friends, I am Professor Wayam Khan and this is the fourth part of our linear programming problem series, and into today's part we'll discuss the solution of LPP by using the big M, or you can say penalty method. Now this big M method is another method used to solve the problem of linear programming problem, and in this big M method we use artificial variables. Okay, like in our simplex method we use slack variables, but in this particular method of big M we will be using artificial variables. Okay, now to solve LPP by simplex method we have to start with IBFS, initial basic feasible solution, and we have to construct the initial simplex table. Okay, now in previous problems we have seen that the slack variables were able to give us our initial basic feasible solution. To find the initial basic feasible solution we used to put x1 and x2, or say x3 equal to 0, and by putting these x1, x2, x3 equal to 0 we used to get the values of slack variables, that is s1, s2 and s3, or say number of slack variables were computed from such a kind of process. But however there are some problems where you do not get the values of slack variables directly. Okay, now these problems are generally of type equal to or greater than or equal to. Okay, there will be some constraint in the given problem which will be having the constraints like equal to or greater than or equal to. Up till now we have only seen the constraints with less than or equal to sign. Okay, less than or equal to inequality, but in big M method we have some constraints which are having equal to sign and is having or maybe having greater than or equal to sign. So whenever a problem is asked and if you see it is having equal to or greater than or equal to sign, then it is to be solved using big M method. Okay, now in this particular big M method the algorithm is as follows. Step 1 is you have to express the given LPP in the standard form of your simplex table. So see, the difference here only is the artificial variables. Now these artificial variables name itself indicates that they are artificial. They are only here to maintain the logic, or you can say to maintain the to find the feasible solution only. Okay, they are not to be used anywhere else, or they are not to be present in the optimal solution. Okay, now the most of the process is similar to your simplex method, only the artificial variables are introduced in some part. Okay, now let's see. Step 1 is to express the LPP in standard form by introducing slack variables, or say surplus variables. Now what is slack variable and what is surplus variable? Slack is nothing but your idle, or surplus is your additional variables. So when to add surplus and when to add slack variables. Up till now we were adding slack variables because the sign of the constraint was less than or equal to. Okay, now after adding these slack variables or surplus variables, we introduce non-negative variables to the left hand side of all constraints of greater than or equal to or equal to type. Now before this second variable, see, I'll tell you what that step 1 is our regular method to convert LPP into standard form of simplex table. Now we will add slack variables if the constraint is having less than or equal to sign, and we will subtract
the slack variable or surplus variable from left hand side of the constraint having greater than or equal to or simply equal to sign. So for greater than or equal to, you have to subtract the slack variable, and for less than or equal to, you have to add the slack variable. These are the first type of variables that we are introducing. Now in second term, the BigM method process starts. Here we introduce some more variables. These variables are called artificial variables. These are non-negative. They are not positive, they are not negative, okay, at any time. The slack variables can be positive or negative depending on the sign of the constraint, but these second variables or these artificial variables are always positive. They are denoted by a1, a2, a3 and up to so on. Okay, now these variables are introduced on the left side of the constraints only which are having greater than or equal to sign. Okay, these constraints are to be added only to the these variables are to be added only to the constraints with equal to sign or greater than or equal to sign only. Okay, not to the less than or equal to sign. Now the purpose of introducing artificial variables is just to obtain IBFS. However, addition of these artificial variables causes violation of the corresponding constraints. Therefore, we have to get rid of these variables in your optimum simplex table. So all the variables added a1, a2, a3 are to be removed. Okay, and when I'm saying removed, that means they should be leaving at the end of the solution. So you know, entering variables, when we solve, when we iterate, we use key column, we use key row, we use key element. So key column is your entering variable, key row is your leaving variable, right? So these variables are to be removed at the time of your optimum simplex table, and to achieve this, we assign a very large penalty to these variables. These are nothing but the coefficients of these variables. Okay, now this penalty is minus m. This particular penalty minus m is used or is applied to the artificial variable if the problem is of maximization, and this penalty is added in the objective function. Okay, so you write standard form of objective function like x1 plus x2 plus 0 s1 plus 0 s2, like right, like this. So similarly we'll write for your a1 variable or a2 variable like minus ma1 or plus ma1 depending on the maximization or minimization problem. I'll show you in this numerical, I'll show you exactly how to add or how to impose this large penalty on the your linear programming problem. You form a basis column in the table, and that basis column is having at initial it is having slack variables, then some your non-basic variables enter into that column, and then we remove slack variables from there and we write the non-basic variables like x1 x2 instead of s1 s2 in that particular column. Okay, now the first case that is here is there is no artificial variable in the basis. Okay, जो बेसिस का कॉलम रहेगा उसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल बचा हुआ नहीं रहेगा. इसका मतलब क्या है कि जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल थे a1 a2 a3 जो भी रहेंगे वो सभी क्या हो गए हैं, रिमूव हो चुके हैं. दैट मीन्स योर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर टोटली रिमूव्ड आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन. सो इन दैट केस आपका सॉल्यूशन जो है इट कैन लीड टू एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और इन अ सच केस application of simplex method is continued until either an optimum basic feasible solution is obtained. जब तक आपको basic feasible solution या जो optimal solution है वो नहीं मिलता तब तक आप क्या करते हैं, फिर ये iteration repeat करते हैं. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे ही आर्टिफिशियल वेरिएबल आखिरी वाला या सभी रिमूव जैसी हो जाएंगे
वैसे ही हमारा जो सोल्यूशन मिलता है वो कई बार आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन रहता है। ओके, ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 ऐसा रहेगा, केस नंबर 2 विल बी लाइक दिस, दैट द बेसिक कॉलम विल हैव सम आर्टिफिशियल वेरिएबल इन इट, एटलीस्ट वन, एक उसके अंदर वेरिएबल बचा रहेगा, बट उसकी करस्पॉन्डिंग जो b का वैल्यू है, मतलब कॉलम b का जो वैल्यू है वो रहेगा 0। सो देयर इज एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द बेसिस कॉलम एंड विच इज़ एट 0 लेवल विथ 0 वैल्यू इन b कॉलम। ओके, b कॉलम जो रहता है ना हमारा राइट हैंड साइड जहाँ पर हम लिखते हैं b कॉलम में, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पर 0 हो जाएगी। मतलब उसका इफेक्ट जो आपके z मीन पर या z मैक्स पर होगा वो टोटली 0 रहेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये b की वैल्यू और ये बेसिस वाले हमारे वेरिएबल्स, इनको कंसिडर करके क्या करते हैं, हमारा z मैक्स और z मीन निकालते हैं। तो जो भी हमारा बेसिस के रिस्पेक्टिव वैल्यू रहती है उसको हम उस वेरिएबल की जगह पर पुट करते हैं। तो अगर हमारा बेसिस में कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल बचा है, जैसे a1 होगा या a2 बचा होगा या a3 बचा होगा, उसकी अगर वैल्यू b 0 है तो ऑटोमेटिकली उसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इट विल नॉट अफेक्ट एनी काइंड ऑफ योर z मीन और z मैक्स। ओके, ऐसे प्रॉब्लम को, ऐसे केस को बोलते हैं डीजेनरेट सोल्यूशन। ये सोल्यूशन भले ही डीजेनरेट रहेगा, भले ही उसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल रहेंगे, बट देयर इज़ एन ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन और ऑप्टिमल सोल्यूशन पॉसिबल। ओके, और तीसरी केस रह सकती है कि जब आर्टिफिशियल वेरिएबल वहाँ पर रहेगा बट उसके करस्पॉन्डिंग b का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी, मतलब नॉन ज़ीरो वो वैल्यू रहेगी। तो ऐसे केस में ये सोल्यूशन टोटली क्या बोलेंगे, इनफिजिबल हो जाता है और हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो LPP डज नॉट पजेस एनी फिजिबल सोल्यूशन, सो आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। सो बेटर है कि हम प्रॉब्लम के ज़रिए से ही ये स्टडी कर लेंगे। सो हम प्रॉब्लम देखते हैं, सॉल्व बाय बिग M मेथड बोला गया है। मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू 12x1 प्लस 20x2 विच इज सब्जेक्ट टू 6x1 प्लस 8x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, 7x1 प्लस 12x2 greater than or equal to 120. Up till now we have dealt with the constraints which are having less than or equal to symbol. Now the symbols are here, the inequality signs here are greater than or equal to. So we have to use big M method here. Okay, so one artificial variable will be added into this equation and another artificial variable will be added into this equation. Okay, but first step is convert this problem into simplex standard form. So to convert it into simplex standard form, what we do, we only add slack variables to it, but here inequality sign is greater than or equal to. So therefore instead of adding s1 to this first constraint and adding s2 to this first constraint, we will subtract the variables, slack variables from it. Okay, अब जब भी आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो आपको क्या करना है कि जो सरप्लस है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सब्ट्रैक्ट द स्लैक वेरिएबल्स फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू। सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू में आपको माइनस स्लैक वेरिएबल्स लेने हैं, लेस देन और इक्वल टू में नहीं, लेस देन और इक्वल टू में प्लस लेना है। ऐसे वेरिएबल्स को बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल्स, क्योंकि वो ज़्यादा है, एडिशनल है। ओके, सो इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स s1 s2, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाता है 12x1 प्लस 20x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। अब यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आप ऐड करो एडिशनल, इसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, स्लैक वेरिएबल का यहाँ पर s1 ऐड करो, s2 ऐड करो, s3 ऐड करो, उनके साइन पॉजिटिव ही रहेंगे, ये ध्यान में रखना है। देन सब्जेक्ट टू 6x1 प्लस 8x2, और सिंपली हमने यहाँ से स्लैक को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, और ये इनइक्वालिटी साइन हट गई, यहाँ पर आ गया 100। ओके, सो 6x1 plus 8x2 minus s1 equal to 100, then 7x1 plus 12x2 minus s2 is equal to 120, and x1 x2 s1 s2 greater than or equal to 0. This is the first step. Now in next step what we do, we find initial basic feasible solution. So finding initial basic feasible solution, for finding it we put x1 and x2 equal to 0. So after putting x1 and x2 equal to 0, I found that s1 is equal to minus 100 and s2 is equal to minus 120. But it is not feasible to have negative slack variables, क्योंकि हमने कंडीशन देखा है सिंप्लेक्स का, इसमें हमें बताया गया है
it is told to us that the constraint or the constraint should be always पॉजिटिव. जो कंस्टेंट रहेंगे राइट हैंड साइड की जो कंस्टेंट की वैल्यूज़ रहेगी वो पॉजिटिव रहनी चाहिए या स्लैक वेरिएबल्स पॉजिटिव रहने चाहिए. तो यहाँ पर हमको आर्टिफिशियल वेरिएबल्स क्या करना पड़ेंगे, ऐड करना पड़ेंगे. सो वी विल ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स नाउ. अब हम क्या करेंगे, सिंपली आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना मतलब क्या, जैसे आप स्लैक करते थे ऐड वैसा ही आपको आर्टिफिशियल ऐड करना है. ओके सो आपको क्या करना है कि ये प्लस A1 रखना है यहाँ पर और यहाँ पर प्लस A2 रखना है. ओके अब ये हमेशा स्लैक वेरिएबल्स क्या रहेंगे, यहाँ के पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेंगी. ये हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे. स्लैक वेरिएबल्स कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव. पॉजिटिव कब लेना है, वेन एवर इट इज़ लेस देन और इक्वल टू. नेगेटिव कब लेना है, वेन एवर इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, और सिंपली इक्वल टू साइन अगर रहा तो. ओके बट हमेशा आर्टिफिशियल वाले हमेशा पॉजिटिव आपको यहाँ पर लेना है. ओके नाउ x1 x2 s1 s2 a2 a1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये हो गया कन्वर्ट हमारे बिग एम मेथड के प्रॉब्लम में. अब सिंस नाउ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स विथ values greater than 0 violates the inequality in constraints which are established in step 1. Therefore a1 and a2 should not appear in optimal solution. हमारा यही एम रहना चाहिए कि ये हमारे फाइनल सोल्यूशन में ये आर्टिफिशियल वेरिएबल्स किसी भी तरीके से नज़र ना आए. ओके अब ये अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ी लार्ज पेनल्टी इन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को लगा देंगे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. जैसे हम हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में स्लैक वेरिएबल से कोएफिशिएंट 0 रखते हैं, वैसा हम क्या करते हैं इन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का जो कोएफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो रखते हैं हम m. ओके अब पॉजिटिव m रखेंगे हम फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, माइनस m रखेंगे हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए. सो इन दैट वे द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बिकम्स नाउ 12x1 प्लस 20x2 0s1 प्लस 0s2 प्लस m a1, मतलब a1 का कोएफिशिएंट क्या है, m है. एंड दिस m इज़ हैविंग अ वेरी लार्ज वैल्यू. एक लार्ज इमेजिनरी वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पर एज्यूम करते हैं. ओके बट इट इज़ नॉट इन्फिनिटी, इट्स अ लार्ज वैल्यू. प्लस ma2. ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर. अब हम क्या करेंगे, ये सभी चीज़ों को हमारे सिंप्लेक्स के टेबल में लिख लेंगे. ओके नाउ लिखने से पहले हम क्या करेंगे कि जो x1 है x2 है s1 है s2 है इनको सभी को 0 ट्रीट करेंगे और इसकी बेसिस से हमारा a1 और a2 का वैल्यू निकाल लेंगे. सो a1 इज़ इक्वल टू 100 एंड a2 इज़ इक्वल टू 120. नाउ आफ्टर पुटिंग x1 x2 s1 s2 इक्वल टू 0 एंड नाउ विल कंस्ट्रक्ट द सिंप्लेक्स टेबल. सो सिंप्लेक्स टेबल में हम पहले cj लिख लेंगे, द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन वेरिएबल्स ऑफ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इनके जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 s1 s2 a1 a2 इनके कोएफिशिएंट्स यहाँ पर लिखना है. सो वी विल राइट दिस कोएफिशिएंट्स. सो क्या क्या है हमारे कोएफिशिएंट्स, यहाँ है 12 20 0 0 mm. सो ये 12 20 0 0 mm यहाँ पर सभी जगह पर आ गया. सो आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा, सभी जगह पर ये टेबल यूज़ हो रहा है. बेसिस में क्या आता है, CB क्या है, फिक्स्ड रेशो क्या है, ये x1 x2 इनका मीनिंग क्या है, ये b क्या है, ये थीटा क्या है, ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी. नाउ आफ्टर राइटिंग द CJ वैल्यूज़ विल राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट कंस्ट्रेंट इन दिस थर्ड रो, और यू कैन से इन द रो ऑफ A1 की रो में क्या करेंगे हम, जो कोएफिशिएंट्स हैं कंस्ट्रेंट नंबर 1 के वो सभी यहाँ पर लिख देंगे. ओके एंड दिस CB विल रिप्रेजेंट द कोएफिशिएंट्स ऑफ A1 एंड A2. सो A1 के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में के जो कोएफिशिएंट्स है वो यहाँ लिखना है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा m और यहाँ पर भी आएगा m. ओके अब हम पहला लिख देते हैं पहली रो. सो फर्स्ट कंस्टेंट इज 6x1 प्लस 8x2 माइनस s1 प्लस a1 इक्वल्स टू 100. सो ये जितने भी x1 x2 s1 s2 a1 a2 के कोएफिशिएंट्स है वो यहाँ पर लिख दिए. सिमिलरली सेकंड वाले के भी लिखेंगे. तो सेकंड है 7x1 12x2 माइनस आपका 0 प्लस 0 s1 माइनस s2 0 a1 एंड प्लस a2 एंड इज इक्वल टू 120. ये लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, zj फाइंड आउट करते हैं. अब zj कैसा फाइंड होता है, zj इज़ नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस CB इंटू दिस प्लस
this CB into this. So M6 or you can say 6M plus 7M, so it will be equal to 13M. Similarly, M multiplied by 8, 8M plus M multiplied by 12, 12M. So 8M plus 12M is equal to 20. And similarly, the rest of the Zj is computed. Okay. Now in next step, we'll find Cj minus Zj. So Cj minus Zj is nothing difficult, is 12 minus 13M. So you just have to write it, 12 minus 13M, 20 minus 20M. So it will be coming into fractions afterwards. It will be coming into some equations like this. So do not need to worry, no need to worry, just write them as they are you can say being computed. Okay. So after finding this, we have to perform the optimality test. We have to see whether all Cj minus Zj are positive or at least 0. Okay. But if you see here, you'll find 12 minus 13M, there is a minus sign present in between them. So it is a possibility that these two values are negative. So since Cj minus Zj is negative under these two column, the current feasible solution is not optimal. It is not optimal right now. So we have to iterate करते वक्त क्या करते हैं आप, जो भी मोस्ट नेगेटिव है उसको क्या करते हैं, Cj माइनस Zj में से मोस्ट नेगेटिव को सेलेक्ट करते हैं फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, और मैक्सिमाइजेशन में क्या करते हैं हम कि Cj माइनस Zj में जो मोस्ट पॉजिटिव है उसको सेलेक्ट करते हैं. सो यहाँ पर हम मोस्ट नेगेटिव को सेलेक्ट करेंगे. अब मोस्ट नेगेटिव कैसा डिसाइड होगा, तो आप सिंपली क्या करो, m को एक बड़ी वैल्यू असाइन कर दो, से 100 हम उसको असाइन करते हैं. 100 असाइन करने के बाद में जो टोटल आएगी वो यहाँ पर हमको लिखना नहीं है, हमको सिर्फ इमेजिन करना है. जैसे 12 माइनस 13 इंटू 100 जब मैं करता हूँ, सो 13 इंटू 100 इट विल गो अराउंड 1300 1300 हो जाएगा, और उसमें से जब मैं माइनस करूँगा 13, सो it will come around like your one two double eight. It will come around 1288 after subtracting 12 minus 1300, or you can assign a simple value 10 to it, and after assigning 10, so 12 minus 130 is around 118, so that is carrying a minus sign here, minus 118 है. और यहाँ पर जब हम करते हैं, so 20 minus 200 is nothing but minus 180. so minus 180 और minus 118 में minus 180 is most negative, so this becomes your key column. ये आपका की कॉलम बन जाता है. देन यू हैव टू सेलेक्ट की रो, एंड की रो को सेलेक्ट करने के लिए आपको थीटा चाहिए. थीटा कैसा कंप्यूट होता है, बी डिवाइडेड बाय योर की कॉलम, सो 100 डिवाइडेड बाय 8 एंड 120 डिवाइडेड बाय 12. सो आउट ऑफ दिस थीटा विच एवर इज लीस्ट पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव जो थीटा रहेगा वो हमको सेलेक्ट करना है. सो आफ्टर डिवाइडिंग 100 बाय 8 इट कम्स अराउंड योर 12.5, and after dividing 120 by 12 it comes around 10. So 10 is least positive out of these two, so we select this and we enter into this row and we enter into this column. So this column means x2 is your entering variable and this row means a2 is your leaving variable. ये a2 बाहर चल जाएगा, x2 उसके जगह आ जाएगा. ये m जो है ये a2 का वेरिएबल था, तो सिमिलरली x2 का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वेरिएबल है वो है 20, तो ये 20 यहाँ पर आ जाएगा, and the whole new row or the whole new table will be computed in next step. So उसको compute करने के लिए हम क्या करते हैं, साथ ही साथ में fixed ratio भी find out करते हैं. See, this is your entering row, this is your key element, this is your key column, this is key row, this is entering variable, this is leaving variable. So now this key element ये 12 है इसकी वैल्यू, we have to make it unity, इसको एक बनाना पड़ता है. इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे. सिंस एक ही एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर सकते, विल डिवाइड द होल रो बाय 12. सो दिस विल बिकम 7 बाय 12, दिस विल गो 12 बाय 12 इज 1, दिस विल बी और 0 बाय 12 इज 0, सो दिस विल बिकम माइनस 1 बाय 12, दिस विल बिकम 1 बाय 12, दिस विल बिकम 10. ओके, एंड नाउ दिस a2 विल बिकम x2
and here you will write the coefficient of x2, that is 20 here. Okay, now the values above or below this key element or the values of key column has to be made 0. अब ये बचे हुए जो ज़ीरो की कॉलम की वैल्यूज़ हैं इनको ज़ीरो करना है. सो तब हम क्या करते हैं, हमारा फिक्स्ड रेशो का इस्तेमाल करते हैं. अब फिक्स रेशियो का इस्तेमाल कैसा करेंगे, C8 ज़ीरो कैसा होगा, अगर इसमें से 8 माइनस होगा तो इसमें से 8 माइनस कैसा होगा, तो ये 12 जो है इसको अगर हम 8 में कन्वर्ट कर दे किसी तरीके से तो उसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा 0. सो ये कैसा होगा, इट विल बी फ्रॉम फिक्स्ड रेशो. फिक्स्ड रेशो कैसा बनता है, इट इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ की कॉलम डिवाइडेड बाय द की एलिमेंट. सो 8 डिवाइडेड बाय 12, सो इट कम्स अराउंड 2/3. ओके, 8 में 8 डिवाइडेड बाय 12 अगर करते हैं तो ये 2/3 आ जाएगा. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस रो बाय 2/3 एंड सब्ट्रैक्ट दिस A1 रो फ्रॉम इट. सो योर A1 रो ट्रांसफॉर्मेशन हमको करना है. सो A1 रो ट्रांसफॉर्म्स टू 2/3 A2 माइनस A1. सो 2/3 A2 मतलब ये हो जाएगा 8. सो 8 में से 8 आप माइनस करो, ये हो जाएगा 0. सिमिलरली 14/3 माइनस 6 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. सिमिलरली आपको -2/3 माइनस 0 कैलकुलेट करना पड़ेगा. आपको 2/3 माइनस 0 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड सिमिलरली आपको इस b के लिए भी कंप्लीट वो चीज़ करनी पड़ेगी. सो उसको हम परफॉर्म करते हैं. सो वेरिएबल A2 इज रिप्लेस्ड बाय x2. नाउ परफॉर्म रो ऑपरेशंस बाय यूजुअल वेज. Solution will become optimal when all Cj minus Zj becomes 0 or positive. Since A2 is living variable, we delete the A2 column. A2 living variable है, इसलिए हम A2 का कॉलम भी क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं. और ये हमारा नया टेबल हम कंप्यूट करेंगे. सी देखो यहाँ पर हमने x2 यहाँ पर एंटर कर दिया है. इसको यूनिटी में कन्वर्ट किया है. 7/12 12 से डिवाइड करने के बाद -1/2, ये 120/12 किया तो 10 आ गया. अब हम A1 की रो कंप्यूट करेंगे. तो A1 की रो कंप्यूट करने के लिए हमने वो फिक्स रेशो का इस्तेमाल किया. इसको 0 बना दिया, बचे हुए एलिमेंट्स जैसे कैलकुलेट होते हैं वैसे कैलकुलेट कर दिए. ये बन गया हमारा नया टेबल. यहाँ पर सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि जो एग्जिटिंग वेरिएबल है, जो वेरिएबल बाहर जा रहा है, उसका कॉलम भी आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है. हम स्लैक वेरिएबल्स के टाइम पे वो नहीं करते थे, बट आर्टिफिशियल वेरिएबल के टाइम पे हम ये करेंगे. ओके, Zj निकालो. Zj कैसा निकलता है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस. सो ये इस तरीके से कुछ फ्रैक्शंस में आ जाएगा. सो नाउ यू हैव Cj माइनस Zj ऑल्सो. Cj में से Zj माइनस कर दो, ये वैल्यू आपको मिलेंगी. नाउ यू हैव टू चेक वेदर दीज वैल्यूज़ आर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो कुछ वैल्यू इसको असाइन कर दो, जैसे 10 m को असाइन करो और कंप्यूट करो. सो आफ्टर कंप्यूटिंग इट यू फाइंड दैट दिस वैल्यूज़ आर नेगेटिव. आउट ऑफ दिस वन इज़ मोस्ट नेगेटिव. सो यू सेलेक्ट इट, you select this value, you select the key column. अभी हमने की कॉलम सेलेक्ट कर लिया है. की कॉलम क्या बनता है हमारा, x1 हमारा एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा. अब हमको लीविंग वेरिएबल मतलब बाहर जाने वाला वेरिएबल डिसाइड करना है. तो हम थीटा कंप्यूट करेंगे. थीटा के लिए 20 डिवाइडेड बाय द की कॉलम एलिमेंट. सो वो हम कंप्यूट करते हैं तो 15 आता है. ये 120/7 आता है. सो इन दोनों में से जो भी छोटा वैल्यू है उसको सेलेक्ट करो. सो दैट इज़ नथिंग बट योर 15 इज़ स्मॉलेस्ट लीस्ट पॉजिटिव एंड लीस्ट पॉजिटिव सेलेक्ट करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि लिविंग वेरिएबल कौन सा है. सो लिविंग है हमारा A1, तो A1 भी निकल जाएगा. एंड योर की एलिमेंट इज़ 4/3. अब ये तो इटरेशन हो गया है हमारा. हमने फिक्स रेशो भी बना लिए, फिक्स रेशो भी ये कर लिए. कंप्यूट करें फिक्स रेशो कैसा कंप्यूट करें, तो आपका 7/12 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 4/3. सो वो वैल्यू आई है हमारी 7/16. नाउ दिस हैज़ टू बी मेड 1 एंड दिस हैज़ टू बी मेड 0. सो इसको 1 करने के लिए इट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3/4. सो द होल रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3/4. एंड सिमिलरली देर विल बी रो ट्रांसफॉर्मेशन like A1 changes to 7/16 x2 minus A1. Okay, and this will become 0 and these all things will get changed. So हम फिर से नया टेबल हमारा कंप्यूट करेंगे. नया टेबल जब हम कंप्यूट करते हैं तो उसमें बेसिस में अभी x1 और x2 हमारे एंटरिंग वेरिएबल आ चुके हैं. x1 हमारा नया एंटरिंग वेरिएबल है, इसके रेस्पेक्टिव
जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर लिख दो, ये लिख दिए हमने। इसको यूनिटी कर लो, बचे हुए एलिमेंट्स को ज़ीरो करो, ये 7/16 से मल्टीप्लाई करो और सब चीज़ें कंप्यूट करो। b भी कंप्यूट करो, b हमने कंप्यूट कर लिया है। नाउ दिस x1 and x2 are here. All the artificial variables are you can say have been removed from the solution. Now we'll see cj minus zj whether it is positive or 0. So two of them are 0 and the rest of them are positive. So there is no negative cj minus zj. That means this is your optimal solution, and this optimal solution is having the value of x1 is equal to 15 and value of x2 is equals to 5/4. Okay, now this 205 is nothing but the value of your z mean. Okay, now ये x1 इक्वल टू 15 डाल दो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ये x2 इक्वल टू 5/4 डाल दो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर z मीन. सिंस ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव और 0 of cj, your current feasible solution is optimal solution. x1 is equal to 15, x2 is equal to 5/4 and z mean is 12x1 plus 20x2, and if you put these values into it, it comes around 205. ये आता है 205. So ये हो गया आपका बिग एम का solution. So thank you for listening. Stay at home, stay safe, stay healthy and keep learning. Thank you.